Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. میرے دور میں پاکستان اور بھارت کے درمیان کامیاب تاریخی جنگ بندی ہوئی. لاکھوں لوگ اس کشیدگی سے متاثر ہو سکتے تھے. ان تمام لوگوں کا شکریہ جنہوں نے جنگ بندی میں اہم کردار ادا کیا. آپ اچھے اور سمارٹ لیڈرز ہیں. آئیے تجارت کریں. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا سعودی بزنس فورم کی تقریب سے خطاب. Recently, with the help of Pakistan, we apprehended the ISIS terrorists responsible for the attack on 13 American service members at Abbey Gate, that horrible, horrible disaster during this Afghanistan withdrawal. You know, that's another thing that we don't even think about so much anymore. 13 died, but 42 were horribly wounded. But hundreds of people died overall. We wouldn't have had Abbey Gate because there wouldn't have been any reason we were getting out, but we were getting out with dignity and with strength and power. But the way they got out was not good. I think it was the most embarrassing moment in the history of our country. امریکی صدر کا دہشت گردی کے خلاف پاکستان کے کردار کو زبردست خراج تحسین. پاکستان نے دہشت گردی کے خاتمے میں امریکہ کا بھرپور ساتھ دیا. پاکستان اور امریکہ دہشت گردی کے خلاف ایک مضبوط اتحادی بن چکے ہیں. ایبی گیٹ پر حملے میں داعش کے دہشت گرد گرفتاری پاکستان کے تعاون سے ممکن ہوئی. ڈونلڈ ٹرمپ. ترک صدر کا پاکستان کی واضح حمایت کا اعلان. ترکیہ اچھے اور برے وقت میں پاکستانی قوم کے ساتھ کھڑا رہے گا. اپنے بھائی وزیر اعظم محمد شہباز شریف سے ٹیلی فون پر اہم گفتگو ہوئی. کشمیر میں وحشیانہ دہشت گرد حملوں اور پاکستان پر میزائل حملوں پر واضح موقف کا اظہار. دونوں ملکوں میں تناؤ کم کرنے کے لیے انت تک کوششیں کی. پاکستانی بھائیوں نے صبر و تحمل اور دانش مندی کا مظاہرہ کیا. جنگ بندی سے قائم ہونے والا پرسکون ماحول پانی سمیت تمام مسائل کے حل کے لیے ضروری ہے. صدر رجب طیب ایردوان کا ترک کابینہ کے اجلاس سے خطاب. پاکستان کو ترکی کے ساتھ اپنے دیرینہ برادرانہ تعلقات پر فخر ہے. ترک صدر رجب طیب ایردوان کی جانب سے پاکستان کی حمایت اور یکجہتی کا خیر مقدم کرتے ہیں. وزیر اعظم محمد شہباز شریف کا ایکس پر پیغام. وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی ہولی فیملی اسپتال راولپنڈی آمد. بھارتی ڈرون حملے میں زخمی محنت کش توقیر عباس کی عیادت کی. بہترین طبی سہولتیں فراہم کرنے کی ہدایت. جلد صحت یابی کے لیے دعا. اللہ تعالیٰ نے شہداء کی قربانیوں کی بدولت پاکستان کو فتح نصیب کی. محسن نقوی. پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا. بھارتی اہلکار کو 24 گھنٹے میں ملک چھوڑنے کا حکم. عملے کے ایک رکن کو اپنی حیثیت سے مطابقت نہ رکھنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا. ترجمان دفتر خارجہ. پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کا اشتعال انگیز بیان مسترد کر دیا. سیاسی فائدے کے لیے گمراہ کن بیانات عالمی قوانین کی خلاف ورزی. علاقائی امن و استحکام کے لیے عالمی سطح پر کوششیں کی جا رہی ہیں. پاکستان اپنا کردار ادا کرنے کے لیے پرعزم ہے. امن کی خواہش کو کمزوری نہ سمجھا جائے. کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا. ترجمان دفتر خارجہ. 22 اپریل کو ہونے والے پہلگام حملے کی تحقیقات جاری ہیں. بھارت نے تحقیقات کے نتائج کا انتظار کیے بغیر 6 سے 10 مئی کے درمیان پاکستان پر سینکڑوں سپر سونک میزائل اور ملٹری ڈرون فائر کر دیے. یہ اقدام بین الاقوامی قوانین کی سنگین خلاف ورزی ہے. ترجمان بھارتی وزارت خارجہ رندھیر جیسوال کا اعتراف.
पाक फजाइया ने भारतीय फजाइया को धूल चटा दी। जवाबी कार्रवाई में मुतादिद भारतीय लड़ाका तैयारे गिर कर तबाह। एक भारतीय तैयारा अनंतनाग में गिर कर तबाह, दूसरा तैयारा पामपुर या पुलवामा के इलाके में गिर कर तबाह हुआ, तीसरा तैयारा रामसोर जिला रामबन के इलाके में गिरा, चौथा भारतीय तैयारा अखनूर के खेतों में गिर कर तबाह हुआ, पांचवां तैयारा भटिंडा के इलाके में गिराया गया। सिलसिलावार तबाही भारतीय फजाइया के लिए शदीद धचका। नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू। पाकिस्तान से जंग पर भारत को बड़ी जिल्लत का सामना। भारतीय अवाम और ऑपोजिशन दोनों अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुके। मोदी के जो झूठे दावे, नारे और नापाक अज़ाइम थे, वो सब चकनाचूर हो गए। पहगा अटारी पोस्ट पर पाकिस्तान और भारत के एक कैदी का तबादला। इंडियन बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के पूनम कुमार शाह भारतीय हुकाम के हवाले। पंजाब रेंजर्स के मोहम्मद अब्दुल्ला को पाकिस्तानी हुकाम के हवाले कर दिया गया। सिक्योरिटी जराए। पाकिस्तान और भारत के माबैन असल मसला जम्मू कश्मीर है। सीज फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना अशद जरूरी। अमरीका समेत आलमी बिरादरी की तवज्जो मसले के मुस्तकिल हल का एक नादिर मौका। हालिया कशीदगी में कमी लाने के लिए अमरीकी क़यादत के मशकूर हैं। सऊदी अरब, तुर्की और दीगर दोस्त ममालिक की काविशों के भी शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान किसी भी इश्तियाल अंगेजी और जाहियत का भरपूर जवाब देने की सलाहियत रखता है। अमरीका में पाकिस्तानी सफीर रिजवान सईद शेख का TRT को इंटरव्यू। वजीर रेलवे हनीफ अब्बासी की सदारत में इजलास। रेलवे में इनकलाबी इक़दामात का ऐलान। विजिलेंस डिपार्टमेंट को मजीद बाइख्तियार बनाने का फैसला। चंद महीनों में बदउनवानियों और नाकामियों का मुकम्मल खात्मा किया जाएगा। ट्रेनों की बरवक्त आमद-ओ-रफ्त पर कोई समझौता नहीं होगा। वजीर रेलवे। विफाकी वजीर बहरी उमूर जुनेद अनवर की सदारत में ब्लू इकॉनमी पॉलिसी पर इजलास। ब्लू इकॉनमी शोबे में इस्लाहात की जरूरत है। पाकिस्तान की समुद्री मईशत सालाना $100 अरब कमा सकती है। समुद्री शोबे में जदीद टेक्नोलॉजी की कमी बड़ा चैलेंज है। नई पॉलिसी से माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ के साथ साथ मुआशी तरक्की का नया रास्ता खुलेगा। जुनेद अनवर चौधरी। चेयरमैन सेनेट का इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई, गैस, दिफा समेत अहम शोबों में ताउन मौजूद है। दोनों मुल्कों में तिजारत का हजम मजीद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप से दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। ऐवान बाला में पाकिस्तान रूस फ्रेंडशिप ग्रुप तश्कील दिया जा चुका है। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी का रूस के TV चैनल को इंटरव्यू। सुप्रीम कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स टैक्स तरमीमी एक्ट बहाल कर दिया। आईनी बेंच ने घी और स्टील मिल्स एसोसिएशन की अपीलों पर हुक्म इम्तना जारी कर दिया। आईनी बेंच ने पिशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया। नोटिस जारी। पिशावर हाई कोर्ट ने साबका फाटा और पाटा में सेल्स तरमीमी एक्ट कलअदम करार दिया था। गजा के मुख्तलिफ इलाकों पर इसराइल की वहशियाना बमबारी। 56 फलस्तीनी शहीद, मुतादिद जख्मी। शमाली गजा पर हमलों में 50 अफराद शहीद। खान यूनिस में यूरोपियन हस्पताल से मुत्तसिल इलाके को भी निशाना बनाया गया। रूस, चीन और बरतानिया ने गजा में इमदाद की तकसीम से मुतालिक इसराइल का मंसूबा मुस्तरद कर दिया। इसराइल से गजा की 2 माह से जारी नाकाबंदी उठाने का मुतालबा। आलमी अदालत इंसाफ गजा में नस्ल कुशी पर गौर कर रही है। गजा में इंसानी हुकूक की पामाली हम सबकी नाकामी है। सरबरा अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी प्रोग्राम टॉम फ्लेचर की सलामती काउंसिल को ब्रीफिंग।
पाकिस्तान के शायकीन क्रिकेट हो जाएं एक बार फिर तैयार। पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 10 के बकिया मैचेस का होगा 17 मई से रावलपिंडी में आगाज। पिशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स की टीमें मद्दे मुकाबिल होंगी। 18 मई को पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डबल हेडर मुकाबले पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाए जाएंगे। दो बेहतरीन टीमों के दरमियान फाइनल 25 मई को लाहौर में खेला जाएगा। रोम में WTA 1000 इटालियन ओपन, यूक्रेन की अलीना स्विटलाना को शिकस्त। अमेरिका के पीटर स्टर्न्स ने सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। इटली की जैस्मिन पाओलिनी ने रूस की डियाना शाइडर को हराया। सेमीफाइनल में पाओलिनी और पीटर स्टर्न्स मद्दे मुकाबिल होंगी। अमेरिका के टॉमी पॉल और इटली के जानिब से इटालियन ओपन के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। जर्मनी के एलेक्जेंडर ज़वेरेव, पोलैंड के ह्यूबर्ट हर्केज और इटली के लोरेंस मेसेटी की भी लास्ट 8 में रसाई। अर्जेंटीना के फ्रांचेस्को सेरेंडोलो, जमहूरिया चेक के जैकब मेंसिक और रूस के डैनियल मेदवेदेव का इवेंट में सफर तमाम हो गया। इक्कीस मराहिल पर मुश्तमिल साइकिलिंग ग्रैंड टूर डी जोरोडा इटालिया। चौथा मरहला नीदरलैंड्स के कैस्पर वैन ओर्डन ने अपने नाम कर लिया। कैस्पर ने 189 किलोमीटर का फासला 4 घंटे 2 मिनट 21 सेकंड्स में तय किया। डेनमार्क के रेस पेडर्सन की मजबूत बढ़तरी और लेडीज जर्सी बरकरार। और फार्मूला 1 कार रेस की 75वीं सालगिरह, बर्क रफ्तार गाड़ियों की पहली रेस की रंगीन वीडियो जारी। मद्दाहों के लिए तारीख के इस यादगार लम्हे को नई शक्ल में पेश किया गया है। फार्मूला 1 की पहली तारीखी रेस 13 मई 1950 को सिल्वरस्टोन ट्रैक पर हुई। बरतानिया के बादशाह जॉर्ज हिशम, मलका एलिजाबेथ और शहजादी एलिजाबेथ समेत 1 लाख अफराद ने रेस देखी। An ovation greets the hero of them all, Doc Farina. 90 miles an hour. अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज और खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमैरा राना। खेल की खबरें लिए मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और वेदर अपडेट लिए मैं आपके साथ अब्दुल कदीर। हेडलाइंस आपने सुनी और अब खबरें तफसील के साथ। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी बिजनेस फोरम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा है कि मेरे दौर में पाकिस्तान और भारत के दरमियान कामयाब तारीखी जंग बंदी हुई। लाखों लोग इस कशीदगी से मुतासिर हो सकते थे। उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों का शुक्रिया जिन्होंने जंग बंदी में अहम किरदार अदा किया। Just days ago, my administration successfully brokered a historic ceasefire to stop the escalating violence between India and Pakistan. And I used trade to a large extent to do it. I said, fellas, come on, let's make a deal. Let's do some trading. Let's not trade nuclear missiles. Let's trade the things that you make so beautifully. And they both have very powerful leaders, very strong leaders, good leaders, smart leaders. And it all stopped. और नाज़रीन, अब आपको बताएंगे मार्का बुनियानो मरसूस में दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की आलमी फतह। अमरीकी सदर का दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की कोशिशों का एतराफ़। 13 मई 2025 को सऊदी अरब के शहर रियाद में सऊदी US इन्वेस्टमेंट फोरम 2025 में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के हक में अहम बयान देते हुए कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खात्मे में अमरीका का भरपूर साथ दिया है। अमरीकी अफवाज ने 20 जनवरी से लेकर अब तक इराक, शाम और सोमालिया में 83 दहशतगर्दों का सफाया किया है। एबी गेट हमले में दाइश के दहशतगर्दी की गिरफ्तारी पाकिस्तान के ताउन से मुमकिन हुई है। Recently, with the help of Pakistan, we apprehended the ISIS terrorists responsible for the attack on 13 American service members at Abbey Gate, that horrible, horrible disaster during this Afghanistan withdrawal. You know, that's another thing that we don't even think about so much anymore. 13 died, but 42 were horribly wounded. But hundreds of people died overall. We wouldn't have had Abbey Gate because
there wouldn't have been any reason we were getting out, but we were getting out with dignity and with strength and power. But the way they got out was not good. I think it was the most embarrassing moment in the history of our country. पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे में बड़ा किरदार अदा किया है। पाकिस्तान और अमेरिका दहशतगर्दी के खिलाफ एक मजबूत इत्तेहादी बन चुके हैं। स्काई न्यूज़ के मुताबिक ट्रंप ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के किरदार को ज़बरदस्त खराज तहसीन पेश किया है। दिफाई माहिरीन कहते हैं कि ट्रंप के बयान ने वाज़ेह कर दिया कि भारत दहशतगर्दी को फ़रोग़ दे रहा है, जबकि पाकिस्तान इसके खिलाफ खड़ा है। ट्रंप के बयान से बैनुल-अक़वामी सतह पर बात वाज़ेह हो गई कि पाकिस्तान अमन और आलमी तहफ़्फ़ुज़ में कलीदी हैसियत रखता है। आलमी सतह पर पाकिस्तान को दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर ताकत के तौर पर तस्लीम किया जा रहा है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हालिया बयानात ने पाकिस्तान भारत के ताल्लुकात के हवाले से हलचल पैदा कर दी है। भारत की जानिब से ये कहना कि पाकिस्तान सालिसी के लिए अमेरिकी सदर के पास गया गलत साबित हो चुका है। अमेरिकी सहाफ़ी निक रॉबर्टसन भी कह चुके हैं कि सालिसी के लिए भारत ने राबता किया। भारत के सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ परदारजन ने इंकशाफ किया कि सालिसी के लिए मोदी ने अमेरिका से राबता किया। ट्रंप ने सऊदी अरब में एक तकरीब के दौरान कहा कि शायद हम इन्हें थोड़ा सा इकट्ठा भी कर सकते हैं, जहां वो बाहर जाकर एक साथ अच्छा खाना खाएं। क्या ये अच्छा नहीं होगा? ये बयान जो बज़ाहिर मज़ाहिया था, लेकिन इसके सियासी मज़मुरात पर सोशल मीडिया पर गर्मा गर्म बहस शुरू हो गई है। भारतीय सहाफ़ी सुशांत सिंह ने इस पर कहा कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से भारत पाकिस्तान पर बार बार दिए जाने वाले बयानात मोदी को सियासी तौर पर नुकसान पहुंचा रहे हैं। भारतीय मीडिया ट्रंप के बयानात को बेअसर करने की कोशिश करता है, लेकिन सोशल मीडिया पर उन्हें पजीराई मिलती है। अमेरिकी सदर ने यूएस सऊदी सरमायाकारी फोरम में यह दावा दोहराया कि अमेरिका ने भारत और पाकिस्तान के दरमियान फौजी कशीदगी में कमी और जंगबंदी में अहम किरदार अदा किया। अमेरिकी सदर ने कहा कि दोनों जौहरी ताकतों भारत और पाकिस्तान को तिजारती मुराद की पेशकश की है। अगर आप लड़ाई रोक दें तो हम आपसे तिजारत करेंगे, अगर आप लड़ाई नहीं रोकेंगे तो तिजारत नहीं होगी। ये पहला मौका नहीं जब ट्रंप ने भारत पाकिस्तान ताल्लुकात में सालिसी या किरदार अदा करने का दावा किया हो। ट्रंप माजी में भी इस नौयत के बयानात देते रहे हैं, जिन्हें भारत ने गैर जरूरी मुदाखलत करार दिया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान का पाकिस्तान की वाज़ेह हिमायत का ऐलान, पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दिनों में खड़े रहने के अज़्म का इहाता किया। तुर्की की काबीना के इजलास से खिताब करते हुए सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमने कश्मीर में वहशियाना दहशतगर्द हमले और पाकिस्तान पर मिसाइल हमलों पर वाज़ेह मौक़िफ़ का इजहार किया। दोनों ममालिक के दरमियान इंतहाई ख़तरनाक सतह पर पहुँच जाने वाली तनाव को कम करने के लिए अनथक कोशिशें की। तुर्की के सदर ने कहा कि अपने भाई वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ को टेलीफोन किया और उनसे खित्ते के हवाले से अहम गुफ्तगू हुई। सदर एर्दोगान ने कहा कि पाकिस्तानी भाइयों को उनके सब्र व तहम्मुल और दानिशमंदाना मौक़िफ़ पर एक बार फिर मुबारक पेश करता हूँ। जंगबंदी के बाद कायम होने वाला पुरसकून माहौल तमाम मसाइल बिलखुसूस पानी के मसले के हल को आसान बनाने की ख्वाहिश का इजहार करते हुए तुर्की के सदर ने बिरादर पाकिस्तानी कौम के साथ अच्छे और बुरे दिनों में खड़ा रहने के अज़्म का इरादा किया। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने एक्स पर अपने पैगाम में कहा है कि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत और यकजहती का खैर मकदम करते हैं। पाकिस्तान को तुर्की के साथ अपने देरीना बिरादराना ताल्लुकात पर फ़ख्र है। दोनों मुल्कों के अवाम के रोशन और खुशहाल मुस्तकबिल की तामीर के लिए मिलकर काम करने का अज़्म का इरादा करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और तुर्की के ताल्लुकात हर नए चैलेंज के साथ मज़ीद मजबूत हुए हैं। जनूबी एशिया में अमन के फ़रोग़ के लिए तुर्क सदर के तामीरी किरदार पर शुक्रगुजार हैं। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का होली फैमिली अस्पताल रावलपिंडी में रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के करीब भारतीय ड्रोन हमले में जख्मी मेहनतकश तौकीर अब्बास की अयादत के लिए पहुंचे और बुलंद हौसले को सराहा। उन्होंने कहा कि तौकीर अब्बास की जख्मी आंख बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। वज़ीर दाखिला ने तौकीर अब्बास की जख्मी आंख के इलाज मुआलजे के बारे में डॉक्टर से मालूमात ली और तौकीर अब्बास को बेहतरीन तिब्बी सहूलतें फराहम करने की हिदायत की। वज़ीर दाखिला ने जख्मी तौकीर अब्बास की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ करते हुए कहा कि तौकीर की जख्मी होने वाली आंख को बचाने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाएगी। अल्लाह ताला ने शहदा की कुर्बानियों की बदौलत फतह नसीब की। शहीद अली हैदर और दो जख्मी कज़न तौकीर अब्बास और मंजूर फैसल रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के बाहर चिप्स बर्गर फरोख्त करके ख़ानदान का पेट पालते थे। मार्का मरसूस में तारीखी शिकस्त के बाद
मोदी शदीद बुखलाहट का शिकार हो चुका है। मोदी ने अपनी हजीमत छुपाने के लिए खिताब के नाम पर पुरानी गिदड़ भप्पियों को दोहरा दिया। माहिरीन नफ्सियात के मुताबिक नरेंद्र मोदी की तकरीर एक शिकस्त खुर्दा शख्स की तकरीर थी। वो खिताब के दौरान शदीद खौफ का शिकार दिखाई दिए। तकरीर के दौरान उनकी निगली मुसलसल कांप रही थी। मोदी ने पाकिस्तान पर रिवायती इल्जामात को दोहराया। मोदी की बॉडी लैंग्वेज और चेहरे के तासुरात से भारत की हार वाज़ेह नजर आई। माहिरीन नफ्सियात का कहना है कि मोदी की तकरीर नफ्सियाती और तिब्बी लिहाज से गैर मुनज़्ज़म थी, जो शदीद इज़्तिराब की निशानदेही करती है। नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के दरियाओं में पानी रोकने का गोल मोल जिक्र किया। सियासी तज्जियाकारों का कहना है कि नरेंद्र मोदी की सियासत के खात्मे का वक्त शुरू हो चुका है। दुनिया इस बात की गवाही दे चुकी है कि पाकिस्तान से जंग पर भारत को बड़ी जिल्लत का सामना करना पड़ा है। मोदी के जो झूठे दावे, नारे और नापाक अज़ाइम थे, वो सब चकनाचूर हो गए हैं। भारतीय अवाम और अपोजिशन दोनों अब नरेंद्र मोदी के खिलाफ हो चुके हैं। जिस तरह पाकिस्तान की अवाम पाक फौज के हक में बाहर निकली, उसी तरह भारतीय अवाम मोदी के खिलाफ बाहर निकल आई है। मोदी अब कितना अरसा इक़्तिदार में रहते हैं, इसका फैसला वक्त करेगा। कांग्रेस लीडर रणदीप सिंह सरजीवाला ने डिसॉल्ट के सीईओ एरिक ट्रैपर के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि डिक्टेशन पर मबनी इंटरव्यूज और मनगढ़ंत बातें राफेल स्कैंडल को नहीं दबा सकती। उन्होंने कहा कि कौम को तब्दील शुदा वजाहत नहीं बल्कि मुनसिफाना तहकीकात की जरूरत है। Fixed match between Bharatiya Janata Party and Dassault Aviation will not hide the Rafale scam. The PR stunt that Eric Trappier and Prime Minister Modi are doing will not cover up the layers of corruption in the Rafale deal. Dictated interviews and manufactured lies cannot cover up corruption in the Rafale deal. The first rule of law is mutual beneficiaries and co-accused statements holds no value. The second rule is beneficiaries and accused cannot be a judge in their own case. कांग्रेस अध्यक्ष श्री राहुल गांधी जी ने प्रारंभ से कहा कि राफेल जो लड़ाकू विमानों की जो डील है, जो खरीदारी है, उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। लगभग 41,000 करोड़ रुपए ज्यादा पेमेंट किया गया है फ्रेंच कंपनी को और उनके प्रिय मित्र, प्रधानमंत्री जी के जो प्रिय मित्र हैं श्री अनिल अंबानी जी, उनकी कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए। उसके बाद जो ऑफसेट कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उसमें भी अनिल अंबानी की कंपनी को एक तरजीह दी गई है, उसको तवज्जो दिया गया है। जब हमने ये सारा विषय रखा, आदरणीय राहुल गांधी जी ने जब विषय रखा, तो 3-4 प्रकार के झूठ आए। पहला ये आया कि नहीं जी, प्राइस में कोई गड़बड़ी नहीं है। हमने कहा किस प्राइस पे लिया बताइए, और आज तक नहीं बता पाए। दूसरी बात हमने कहा कि आप अनिल अंबानी को क्यों डाले, तो बोले कि नहीं, अनिल अंबानी को डालने का डिसीजन हमारा नहीं था, फ्रांस की कंपनी का था। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति ओलांदे जी ने साफ साफ कहा है कि यह भारत सरकार की तरफ से दबाव था कि हम, यानी डसॉल्ट एयरवे, जो एरोस्पेस जो उनकी कंपनी है जो राफेल बनाती है, उसको कॉन्ट्रैक्ट तभी मिलेगा राफेल बेचने का अगर अनिल अंबानी के साथ हम आगे का कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। मैक्रोन से बुलवाया गया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं था, जबकि उनको कुछ पता ही नहीं था। अनिल अंबानी को लेने के लिए मजबूर करने वाले कौन सी ताकतें थीं? अगर उन ताकतों की शिनाख्त की जाए तो यह शिनाख्त जाकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के ऊपर रुकती है। और इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष ने साफ साफ शब्दों में कहा है कि प्रधानमंत्री भ्रष्ट हैं, प्रधानमंत्री राफेल विमानों के मामले में झूठ बोल रहे हैं और इसकी एक संयुक्त संसदीय समिति से जांच होनी चाहिए। नाज़रीन, वक्त गुजरने के साथ साथ मोदी सरकार और गोदी मीडिया के झूठ का पर्दा चाक हो रहा है। भारतीय दिफाई माहिर सुशांत सिंह ने मोदी और भारतीय मीडिया पर तनकीद करते हुए कहा है कि नरेंद्र मोदी का अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के दबाव में आना इंतहाई शर्मनाक है। भारत की देरीना हिकमत अमली थी कि पाकिस्तान के साथ कोई भी बहरान दो तरफा के मसले के तौर पर देखा जाएगा, न कि आलमी सतह पर ले जाया जाएगा। सदर ट्रंप ने एक बार फिर भारत और पाकिस्तान दोनों को अजीम कौमें कहकर एक सफ में खड़ा कर दिया। नरेंद्र मोदी ने अपने दौरे हुकूमत में ये बयानिया बताया कि हमारी लड़ाई चीन के साथ है, पाकिस्तान क्या चीज़ है। नरेंद्र मोदी के लिए ये सूरत हाल बहुत शर्मनाक साबित हुई और भारतीय साख को बैन अल-अक़वामी सतह पर नुकसान पहुंचा है। मोदी ने दीगर मौसर ऑप्शंस को इस्तेमाल न करके खुद को कमज़ोर कर दिया और सिर्फ फौजी कार्रवाई पर इंहिसार की गलती की। पाकिस्तान ने 5 भारतीय लड़ाका तैयारों बशमूल 3 राफेल तैयारे मार गिराने का दावा किया, जिसकी तरदीद भारत की जानिब से भी नहीं की गई। भारतीय मीडिया ने इस सारी सूरत हाल में शर्मनाक किरदार अदा करते हुए झूठ को फैला दिया। अगर किसी भारतीय मीडिया प्लेटफॉर्म ने सच सामने लाने की कोशिश की तो उसको दबा दिया गया। तमाम बैन अल-अक़वामी प्लेटफॉर्म्स पर सैटेलाइट के जरिए भारतीय तैयारों की तबाही की तस्दीक करते हुए इसे रिपोर्ट किया। भारतीय मीडिया के मुसलसल झूठ की वजह से हमारे सच को भी बैन अल-अक़वामी सतह पर नज़रअंदाज कर दिया गया।
पाकिस्तानी मीडिया चैनल्स बैन अल-अक़वामी सतह पर मुस्तरद रिपोर्टिंग की वजह से तवज्जो का मरकज़ रहे। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने के हवाले से हमारे कई सहाफ़ियों और एडिटर्स का किरदार शर्मनाक रहा। मार्का बुनियान मरसूस पाक भारत जंग के दौरान मोदी की नाकिस पॉलिसियों पर भारत के हर तबके से आवाजें उठना शुरू हो चुकी हैं। भारतीय फौज के साबिक अफसरान जंग की बजाय सिफारतकारी के हक में बोल पड़े। भारतीय फौज के साबिक आर्मी चीफ जनरल मनोज नरवा ने पाकिस्तान भारत में जंगबंदी पर उठते सवालात को गैर जिम्मेदाराना करार दे दिया है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ का कहना है कि तमाम तस्फीहा तलब मसाइल का हल बातचीत है। साबिक भारतीय आर्मी चीफ के बयान से वाज़ेह तासुर मिलता है कि पाकिस्तान और भारत को मसला कश्मीर पर जंग की बजाय बातचीत करना चाहिए। जंग एक संजीदा और तल्ख हकीकत है, ना कि कोई रोमानवी कहानी और ना ही बॉलीवुड फिल्म है। जंग के असरात सिर्फ मैदान जंग तक महदूद नहीं रहते, बल्कि जंग के असरात मासूम शहरियों और खुसूसन बच्चों पर पड़ते हैं जो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर का शिकार होते हैं। इससे कबल अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान और भारत में मसला कश्मीर में सालसी की पेशकश कर चुके हैं। जंग की हिमायत करने वालों को मुतासरा खानदानों की हालत ज़ात पर भी नजर रखनी चाहिए। मुल्क की कौमी सलामती सिर्फ हुकूमत या फौज का नहीं, बल्कि हर शहरी का मुश्तरका फरीजा है। दिफाई माहिरीन का कहना है कि साबिक भारतीय आर्मी चीफ ये बयानात इस बात की गमाजी करते हैं कि जंग किसी मसले का हल नहीं है। जंग से जुड़े जज्बाती और इंसानी पहलुओं को नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। साबिक भारतीय आर्मी चीफ का बयान से वाज़ेह इशारा मिलता है कि देरपा अमन के लिए मसला कश्मीर को सिफारतकारी से हल किया जाए। अमरीका में सफीर पाकिस्तान रिजवान सईद शेख ने कहा है कि जनूबी एशिया जैसे हसास खत्ते में न्यू नॉर्मल की बातें गैर हकीकत पसंदाना नहीं, न्यू नॉर्मल का कोई भी हवाला बजाते खुद एब नॉर्मल है। ऐसे बयानात से गुरेज करना चाहिए। तुर्क नशियाती इदारे TRT को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि हम अमन पसंद कौम हैं, खित्ते की 1.5 अरब आबादी के मफादात को मुकद्दम रखते हैं। सीज फायर पर अमल दरामद के साथ साथ असल मसले का हल निकालना अशद ज़रूरी है। रिजवान सईद शेख ने कहा कि हालिया कशीदगी में कमी लाने के हवाले से अमरीकी क़यादत की मुसलसल कोशिशों और दीगर दोस्त ममालिक की काविशों के भी शुक्रगुजार हैं। मसला कश्मीर की जानिब अमरीका समेत आलमी बिरादरी की तवज्जो मसले के मुस्तकिल हल का एक नादिर मौका है। In a situation which is as precariously poised as the security situation in South Asia, there is no new normal. Actually, any reference to a new normal in itself abnormal, and it should not be mentioned because we believe in the interest of 1.6 billion peoples of the two countries. It is important not only to retain this ceasefire, but to squarely address the main issue, the core issue between the two countries of the Kashmir dispute, which would continue to plague any peace process or any durable peace in South Asian region. Actually, we believe that peace is in the interest of everybody in the region, and we continue to strive and stand for peace. But if there are provocations, if there are certain degrees of adventurism, actually misadventurism, as the events over 7th to 10th of May proved, and if there is a pointless bravado that is still exercised, we will respond, and we will respond resolutely. We are grateful to the US leadership for playing a role that they have traditionally been playing in trying to de-escalate the situation. And of course, we have to appreciate the efforts of Turkey, Saudi Arabia, and other friendly states in this endeavor. Now, with the international attention on the Kashmir dispute, as indicated in multiple statements by the US leadership and also others, this is perhaps an opportunity to address the issue, squarely address the core issue between the two countries. Otherwise, the situation or the possibility of another escalation will continue to dangle in the face of international community and would be detrimental to any efforts for durable peace, security, and stability in the South Asian regions. And it is encouraging that some attention is being paid, but it needs to be followed through by all friendly countries, including, of course, the United States and Turkey.
آپریشن سندور میں رافیل طیاروں کی ناکامی سے مودی کے گھمنڈ کو شدید دھچکا۔ پاکستان کے خلاف جارحیت میں مودی کو رافیل طیارے کھونے پر بدترین تنقید کا سامنا۔ رافیل طیاروں کی تباہی کے بعد مودی ایک بار پھر رافیل ڈیل میں کرپشن اور فراڈ کے الزامات کی زد میں آ گئے۔ مودی نے رافیل طیاروں کے نام پر اربوں روپے کی کرپشن کی۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق مودی سرکار کو رافیل ڈیل میں 7.5 ملین یورو کمیشن کی ادائیگی ہوئی۔ رپورٹ میں قیمتوں میں مبالغہ اور ڈیل کو مشکوک قرار دیا گیا۔ بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے یہ ادائیگی بھارتی بزنس مین سوشن گتا کو رافیل ڈیل کے تحت 7.5 ملین یورو کی خفیہ کمیشن کے تحت ہوئی۔ کانگریس رہنما راہل گاندھی نے بھی اس پر بیان دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ رافیل ڈیل میں کرپشن کی گئی ہے اور اربوں ڈالر کا فراڈ کیا گیا ہے۔ رافیل ڈیل کے وقت بی جے پی حکومت کے وزیر دفاع منوہر پاریکر بھی اس ڈیل کا حصہ نہیں بنے تھے اور انہیں استعفیٰ دینا پڑا تھا۔ انیل امبانی کی کمپنی 45,000 کروڑ روپے کے قرض میں ڈوبی ہوئی تھی اور اس کی مدد کے لیے ہی نریندر مودی نے رافیل طیاروں کے معاہدے کا سہارا لیا۔ ان انکشافات کے بعد مودی سرکار کی جانب سے اس اہم معاملے کی تحقیقات کو نظر انداز کرنے پر کئی سوالات اٹھ گئے ہیں۔ دی وائر کے مطابق کرائم بیورو آف انویسٹیگیشن نے مودی کے کرپشن اور بدعنوانیوں کو سامنے لایا، مگر مودی نے آج تک اس واقعے پر مجرمانہ خاموشی اختیار کی۔ مودی کے خلاف کرپشن کے کیسز سامنے لانے پر سی بی اے کے ڈائریکٹر کی برطرفی اور تحقیقات آگے نہ بڑھانے پر مودی کی دھمکیاں۔ دی وائر کا بتانا ہے کہ پائلٹ کی نااہلی اور طیاروں کی تکنیکی خامیوں نے مودی کی کرپشن کے پول کھولے۔ مودی سرکار کے ماتحت سی بی آئی کے ڈائریکٹر نے رافیل کرپشن کیس پر تفتیش آگے نہیں بڑھائی۔ اکتوبر 2018 میں سی بی آئی کو رافیل 7.5 ملین یورو کمیشن کی ادائیگی کے ثبوت ملے تھے۔ اور ناظرین اب ایک اہم خبر اہم پیش رفت ہوئی ہے۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی دوسری قسط منتقل کر دی ہے۔ قرض پروگرام کی $1 ارب کی دوسری قسط اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل۔ آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم 16 مئی کو اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی دوسری قسط منتقل کر دی ہے۔ یہ انتہائی خوشائند بات ہے، خوشخبری ہے پاکستان کے لیے۔ پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے 1 ارب کی دوسری قسط موصول ہو گئی ہے۔ اسٹیٹ بینک کہتا ہے کہ یہ قسط پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف نے قرض پروگرام کی دوسری قسط منتقل کر دی۔ قرض پروگرام کی $1 ارب کی دوسری قسط اسٹیٹ بینک آف پاکستان کو منتقل کی گئی ہے۔ آئی ایم ایف سے ملنے والی رقم 16 مئی کو اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں ظاہر کی جائے گی۔ پاکستان کے لیے قرض کی رقم 9 مئی کو آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے منظور کی تھی۔ یہاں آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ پاکستان کو آئی ایم ایف کی طرف سے 1 ارب کی دوسری قسط موصول ہو گئی ہے۔ یہ قسط پاکستان کے لیے ایکسٹینڈڈ فیسلٹی فنڈ کے تحت فراہم کی گئی ہے۔ دیگر خبروں میں ہم آپ کو یہاں آگاہ کر رہے ہیں کہ پاکستان نے بھارتی وزیر اعظم کے اشتعال انگیز اور نفرت انگیز جو بیانات ہیں وہ مسترد کر دیے ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان مودی کے اشتعال انگیز اور جھوٹے بیان مکمل طور پر مسترد کرتا ہے۔ دنیا خطے میں امن اور استحکام کے لیے کوششیں کر رہی ہیں، ایسے وقت میں بیان غلط معلومات اور سیاسی مفاد پرستی پر مبنی خطرناک اقدام ہے۔ ترجمان نے کہا کہ پاکستان سنتاس معاہدے کے تحت اپنے حقوق کی حفاظت کے لیے ہر ضروری اقدام کرے گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان خود بھارت کی سرپرستی میں ہونے والی دہشت گردی کا شکار ہے اور پاکستان نے دہشت گردی کی لعنت کے خلاف بے پناہ قربانیاں دی ہیں۔ دہشت گردی کے خلاف عالمی جنگ میں پاکستان کی خدمات اور قربانیوں کا پوری دنیا اعتراف کرتی ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان ہمیشہ مسئلہ کشمیر کے پرامن حل کا حامی رہا ہے۔ مسئلہ کشمیر کا حل اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیری عوام کی خواہشات کے مطابق ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ کشمیر جنوبی ایشیا میں عدم استحکام کی ایک بڑی وجہ ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ کی تنازع کشمیر کے حل کی کوششوں کی حمایت کا اعادہ کرتے ہیں۔ ترجمان نے کہا کہ ہمارا امن کے لیے عزم کبھی بھی ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے۔ مستقبل میں کسی بھی جارحیت کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ بھارتی وزیر اعظم کا بیان بین الاقوامی قانون کی کھلی خلاف ورزی پر مبنی خطرناک اقدام ہے۔ بیان ظاہر کرتا ہے کس طرح جھوٹے بیانیے گھڑ کر جارحیت کا جواز بنایا جاتا ہے۔ ترجمان کے مطابق پاکستان سیز فائر معاہدے پر عمل درآمد اور کشیدگی میں کمی کے لیے ضروری اقدامات کے لیے پرعزم ہے۔ دفتر خارجہ کے مطابق بھارتی اقدامات خطے کو تباہی کے دہانے پر لے جانے والی خطرناک مثال قائم کرتے ہیں۔ بھارتی اقدامات ایسی
ایسی سوچ کے عکاس ہیں جو خطے میں اسٹریٹجک استحکام کو خطرے میں ڈالنے کے در پہ ہیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ بھارت کسی غلط فہمی میں نہ رہے، ہم آئندہ دنوں میں بھارت کے اقدامات اور طرز عمل کا بغور جائزہ لیتے رہیں گے اور ہم بین الاقوامی برادری سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ وہ بھی ایسا ہی کرے۔ دفتر خارجہ کے مطابق پاکستان کا بھارتی جارحیت کا جواب محتاط اور صرف فوجی تنصیبات کے خلاف تھا۔ پاکستان نے بھارتی فوجی صلاحیت اور اہداف کے خلاف اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا۔ یہ ناقابل تردید اور معلوم حقیقت ہے جسے جھوٹ اور پروپیگنڈے سے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ ناظرین، اسلام آباد میں بھارتی ہائی کمیشن کے سٹاف ممبر کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دے دیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ شفقت علی خان نے ایک بیان میں کہا کہ حکومت پاکستان نے بھارتی ہائی کمیشن کے عملے کے ایک رکن کو اپنی حیثیت سے مطابقت نہ رکھنے والی سرگرمیوں میں ملوث ہونے پر ناپسندیدہ شخصیت قرار دیا۔ بھارتی ہائی کمیشن کے اہلکار کو 24 گھنٹے میں پاکستان چھوڑنے کی ہدایت کی گئی ہے۔ بھارتی ناظم الامور کو وزارت خارجہ میں اس فیصلے سے آگاہ کرتے ہوئے ڈیمارش کیا گیا۔ پاکستان اور بھارت کے مابین سیز فائر تو ہو چکا، تاہم ایل او سی پر بسنے والی سول آبادی پر بھارتی جارحیت اپنے گہرے اثرات چھوڑ گئی ہے۔ وادی نیلم کے علاقوں جورا اور شاہ کوٹ میں بھارتی گولہ باری کے نتیجے میں شہری املاک کو شدید نقصان پہنچا، جبکہ ایک خاتون شہید ہوئی۔ متاثرین کا کہنا ہے کہ بھارتی جارحیت نے ان کی عمر بھر کی محنت اور جمع پونجی کو راکھ کر دیا، مگر ان کے حوصلے اب بھی بلند ہیں۔ شہریوں نے بتایا کہ آپریشن بنیان مرصوص نے ان کے حوصلے مزید بلند کر دیے ہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ وہ اپنے آبائی علاقوں کو چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ انہوں نے عزم ظاہر کیا کہ وہ بھارتی مظالم اور گولہ باری کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے اور پاک فوج کے شانہ بشانہ کھڑے ہیں اور کھڑے رہیں گے۔ ناظرین، غیر قانونی طور پر بھارت کے زیر قبضہ جموں کشمیر میں قابض فورسز نے ریاستی دہشت گردی کی تازہ کارروائی کے دوران ضلع شوپیاں میں 3 بے گناہ کشمیری نوجوانوں کو ایک جعلی مقابلے میں شہید کر دیا۔ کے ایم ایس کے مطابق بھارتی فوجیوں نے نوجوانوں کو ضلع شوپیاں کے علاقے شکروگیلر میں محاصرے اور تلاشی کی کارروائی کے دوران شہید کیا۔ مقامی لوگوں نے پولیس کے اس دعوے کی سختی سے تردید کی کہ شہید نوجوان عسکریت پسند تھے۔ انہوں نے کہا کہ نوجوانوں کو پہلے گرفتار کیا گیا اور بعد میں انہیں ایک جعلی مقابلے میں شہید کیا گیا۔ بھارتی فورسز نے سری نگر میں پرتشدد چھاپہ مار کارروائیوں کا سلسلہ جاری رکھا اور کالے قانون UAPA کے تحت گھروں میں گھس کر بینک دستاویزات، موبائل فون، لیپ ٹاپ اور قیمتی اشیاء اپنے قبضے میں لے لیں۔ فورسز اہلکاروں نے چھاپوں کے دوران مکینوں کو ہراساں کیا، گھریلو سامان کی توڑ پھوڑ کی اور زیورات اور نقدی لوٹ لی۔ وزیر ریلوے حنیف عباسی کی زیر صدارت اسلام آباد میں اجلاس ہوا۔ اجلاس میں احتساب کو یقینی بنانے کے لیے ویجیلنس ڈپارٹمنٹ کو مزید بااختیار بنانے کا فیصلہ کیا گیا۔ اس موقع پر وزیر ریلوے حنیف عباسی نے کہا کہ پاکستان ریلوے کو پاکستان کا فخر بنانے جا رہے ہیں۔ ٹرینوں کی بروقت آمد و رفت پر کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ محکمے سے بدعنوانی کا مکمل خاتمہ کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ ریلوے میں ہونے والی ہر خریداری کا تیسرا فریق جائزہ لے گا۔ حنیف عباسی نے کہا کہ اپنے ملازمین کو تحفظ فراہم کریں گے، نااہلی، سستی اور کسی بھی قسم کی اقربا پروری کو ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ وفاقی وزیر بحری امور جنید انوار چودھری کی ہدایت پر بلو اکانومی پالیسی پر کام کا آغاز ہو گیا ہے۔ اس حوالے سے وفاقی وزیر کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بلو اکانومی شعبے میں اصلاحات کی ضرورت ہے۔ ملک کی سمندری معیشت سالانہ $100 ارب کما سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہی گیری، سیاحت اور شپنگ سے آمدنی میں کئی گنا اضافہ ممکن ہے۔ بلو اکانومی کا عالمی حجم $1.5 ٹریلین تک پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ سمندری شعبے میں جدید ٹیکنالوجی کی کمی بڑا چیلنج ہے۔ نئی پالیسی سے ماحولیاتی تحفظ کے ساتھ معاشی ترقی کا نیا راستہ کھلے گا۔ جنید انوار چودھری نے کہا کہ شپ ری سائیکلنگ اور گرین پورٹ سے اضافی آمدن ہوگی۔ پالیسی پر تمام شراکت داروں سے مشاورت کریں گے۔ سپریم کورٹ نے سابقہ فاٹا اور پاٹا میں سیلز ٹیکس ترمیمی ایکٹ بحال کرتے ہوئے پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ معطل کر دیا۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 5 رکنی آئینی بینچ نے گھی اور سٹیل ملز ایسوسی ایشن کی اپیلوں پر حکم امتناع دیتے ہوئے فریقین کو نوٹسز جاری کر دیے۔ دوران سماعت درخواست گزار گھی اور سٹیل ملز ایسوسی ایشن کے وکیل حافظ احسان کھوکر نے دلائل دیتے ہوئے موقف اختیار کیا کہ پشاور ہائی کورٹ استدعا سے بڑھ کر ریلیف نہیں دے سکتی تھی۔ ہائی کورٹ نے اختیارات سے تجاوز کیا۔ عدالت نے معاملے کی سماعت غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دی۔ پشاور ہائی کورٹ نے سابقہ فاٹا اور پاٹا میں سیلز ترمیمی ایکٹ کالعدم قرار دیا تھا۔
चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी ने मॉस्को अजीम मस्जिद के नायब मुफ्ती रुजान अब्जरूफ से मुलाकात की। मुलाकात में बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी, रवादारी और मुकालमे के फ़रोग़ समेत दोनों मुल्कों के मजहबी इदारों के दरमियान मुश्तरका इक़दाम पर जोर दिया। चेयरमैन सेनेट ने इस्लामोफोबिया, इंतहा पसंदी और दहशत गर्दी के खिलाफ पाकिस्तान के अज़्म का इयादा किया। उन्होंने कहा कि दुनिया को इस्लाम के अमन मोहब्बत के पैगाम की जानिब लौटने की ज़रूरत है। उन्होंने रूसी मुस्लिम क़यादत की खिदमत को खिराज तहसीन पेश करते हुए कहा कि फ़िरका वारियत, गलत फहमियों और सकाफती रवैयों के खात्मे के लिए मुश्तरका कोशिशों की ज़रूरत है। चेयरमैन सेनेट ने मुफ्ती आज़म रूस को दौरा पाकिस्तान की दावत भी दी। चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रजा गिलानी ने कहा है कि दोनों पार्लिमानों के दरमियान आला सतह पर वफूद का तबादला जारी है। पार्लिमानी फ्रेंडशिप ग्रुप्स के जरिए दो तरफा ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करेंगे। रूसी टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू देते हुए कहा कि चेयरमैन सेनेट ने रूस के साथ हमारे एक कदीम और तारीखी नौयत के ताल्लुकात हैं। ईवान बाला में पाकिस्तान रूस फ्रेंडशिप ग्रुप की तश्कील दिया जा चुका है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और रूस के दरमियान तवानाई, गैस और दिफा समेत अहम शोबों में ताउन मौजूद है। नाज़रीन, वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत के इजलास की बात करते हैं। आपको बताएं कि सिंध ने कहा है कि कराची में जो इजलास हुआ उस हवाले से नए माली साल के बजट के हवाले से रहनुमाई और नए माली साल में गैर तरक्याती अखराजात कम करने हैं। उन्होंने कहा कि सिंध हुकूमत ने रवा साल अपने माली वसाइल बेहतर करने की कोशिश की है। नए माली साल में नई स्कीम शुरू की जाएंगी जिससे सालाना तरक्याती प्रोग्राम बढ़ जाएगा। वज़ीर आला सिंध ने उम्मीद जाहिर की कि सूबे के टैक्स कलेक्शन इदारे अपना हदफ पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि नए माली साल में के फोरम पर काम तेज किया जाएगा जिसमें मजीद फंड्स दिए जाएंगे। मुल्तान के मारूफ इल्मी और अदबी मरकज़ टी हाउस में मुमताज़ सहाफ़ी, कॉलम निगार, अदीब और साबिक डायरेक्टर न्यूज़ पाकिस्तान टेलीविज़न सरवर मुनीर राव की किताब मदीना मुनव्वरा तारीख़ के आईने में की तकरीब पज़ीराए मुनक़्क़िद हुई। तकरीब में सहाफ़ती, अदबी और इल्मी हल्कों से वाबस्ता नुमायाँ शख्सियात ने भरपूर शिरकत की। किताब में मदीना मुनव्वरा की तारीख को तहक़ीक़ी, तज्ज़ियाती और दीनी अंदाज में सादा ज़बान में बयान किया गया है। 496 सफ़ात पर मुश्तमिल ये किताब मुस्तनद तारीख़ी हवालों, नायाब मालूमात और रंगीन नक्शाजात से मुज़य्यन है। इस मौके पर मुसन्निफ सरवर मुनीर राव ने कहा कि उनकी कोशिश थी कि मदीना मुनव्वरा की तारीख को सादा, मुअस्सर और दीनी अंदाज में पेश किया जाए ताकि हर कारी इसके पैगाम को समझ सके। तकरीब के मेहमान ख़ुसूसी साबिक रुकन कौमी असम्बली नवाब लियाकत अली ने कहा कि यह किताब आइंदा नस्लों के लिए एक कीमती तोहफ़ा है जो तारीख के कई पोशीदा पहलुओं को उजागर करती है। मारूफ कॉलम निगार खालिद मसूद और दीगर मुकर्रीन ने कहा कि यह तसनीफ़ इस्लामी उलूम में तारीख से शगफ रखने वालों के लिए एक अहम इल्मी सरमाया है। उन्होंने किताब को इल्म व तहक़ीक़ की दुनिया में एक नुमायाँ कदम करार दिया। नाज़रीन, मदीना मुनव्वरा अपनी बेहतरीन खजूर के अक़साम के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। दुनिया भर से आए आज़मीन हज और सयाह यहाँ की बेहतरीन खजूर बतौर हदिया अपने हमरा सौगात ले जाते हैं। सऊदी अरब में मदीना मुनव्वरा और इसके मज़ाफ़ाती इलाके दुनिया भर में खजूर की बेहतरीन अक़साम के लिए मशहूर हैं। यहाँ पर खजूरों के तकरीबन 29,000 बागात हैं जो अपनी बेहतरीन और जायकेदार खजूर के लिए मशहूर हैं। मदीना मुनव्वरा की मार्केटों में खजूर की 120 से ज़्यादा अक़साम पाई जाती हैं। यहाँ का अजवा शहद भी दुनिया भर में मशहूर है। यहाँ की मार्केटें खुश्क मेवाजात, बादाम वाली खजूरों और चॉकलेट्स की भी बेशुमार वैरायटी से भरी पड़ी हैं। मदीना रहमतों और बरकतों का शहर होने के अलावा अपनी खजूर के लिए भी मशहूर है और दुनिया में अपना सानी नहीं रखता। यहाँ पर जबल ओहद के पीछे सैकड़ों एकड़ पर फैले खजूर के बागात हैं जहाँ पर दुनिया की बेहतरीन खजूर पैदा होती है। सबसे पहले तो ये मौजा खजूर है जो एक दिन में पैदा हुई थी। उसके अलावा ये सुकरी खजूर मदीना की कलमी खजूर है। ये अंबर शरीफ और ये मौजा खजूर एक ही बाग में पैदा होती है। इसके अलावा फिर ये मबरूम बोद पाकिस्तान में लाइक की जाती है। अजवा तो बिल्कुल हमारे पास फ्रेश बागों से तोड़ के हम लेके आते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर से आए आज़मीन हज अपने वतन वापस जाते हुए हिजाज मुकद्दस की खजूर बतौर हदिया साथ ले जाते हैं। ज़ायरीन के लिए खजूरों की खरीदारी के हवाले से मदीना मुनव्वरा एक बेहतरीन मार्केट है जहाँ उन्हें मक्का और दीगर इलाकों के मुकाबले में बेहतर खजूर कम कीमत पर दस्तयाब है। बिलाल शेख, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मदीना मुनव्वरा। अक़वाम मुत्तहिदा इमदादी उमूर के सरबराह टॉम फ्लिचर ने गज़ा में इमदाद की तकसीम के इसराइली मंसूबे को मुस्तरद करते हुए कहा कि गज़ा में आलमी इमदाद का इसराइली मंसूबा नापसंदीदा और मकरूह है।
اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس میں غزہ میں امداد کی صورتحال پر اظہار خیال کرتے ہوئے ٹام فلیچر نے کہا کہ غزہ میں امداد کی رسائی میں اسرائیل رکاوٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اسرائیلی رکاوٹ کی وجہ سے جنگ زدہ علاقے میں غزہ میں 2 ماہ سے خوراک، ادویات اور دیگر اشیاء نہیں پہنچ رہی ہیں۔ ہم بروقت اقدامات کر کے لاکھوں فلسطینیوں کو بچا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ عالمی امداد غزہ میں کسی تنظیم کے بجائے عوام تک پہنچ سکے۔ روس، چین اور برطانیہ نے غزہ میں امداد کی تقسیم سے متعلق اسرائیلی منصوبے کو مسترد کرتے ہوئے اسرائیل سے غزہ کی 2 ماہ سے جاری ناکہ بندی اٹھانے کا بھی مطالبہ کیا۔ فرانسیسی صدر میکرون نے بھی کہا کہ غزہ میں اسرائیلی وزیر اعظم کی پالیسی شرمناک ہے۔ غزہ میں 5 لاکھ افراد بھوک کا شکار ہیں۔ یورپی ممالک کو اسرائیل پر پابندیوں میں اضافے پر غور کرنا چاہیے۔ غزہ کے مختلف علاقوں پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 56 فلسطینی شہید اور متعدد زخمی ہو گئے ہیں۔ صرف شمالی غزہ میں حملوں میں 50 افراد شہید ہو گئے۔ اسرائیلی فضائی حملوں میں خان یونس میں یورپین اسپتال کے متصل علاقے کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید۔ ناظرین، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 12 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ ملک کے میدانی علاقوں میں دن کے اوقات میں شدید گرم رہنے کی توقع ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک رہا۔ گزشتہ روز ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت دادو، سبی، تربت 45، روہڑی، خیرپور، شہید بینظیر آباد، جیکب آباد اور لاڑکانہ میں 44 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ موسم کی صورتحال آپ نے ملاحظہ کی اور آپ خبرنامے میں آپ جان سکیں گے کھیل کی دنیا کا احوال۔